ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಬರುವ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರಂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮತ ಬಾಂಧವರಿದ್ದು 88% ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದರು. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಡ ಜನರ ಶ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತಕರೂ ಆಗಿರುವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕಳೆದ 2 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 1 ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸೌಕತ್ ಅಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳವು ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಇಕ್ಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿತು. ಸರಡಗಿ 2 ಬಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಹಾವೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಹೀಗೆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರಂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಗೋಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಮತದ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಕೋಮುವಾದವನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಸೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರಂ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮುದ್ದೀನ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್, ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾದ್ರಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಸಂದೀಪ್, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖಂಡ ಏಸುದಾಸ್, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಲೋಕೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. सलाम पाशा कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का नायब सदर हूँ और मन्नाई किले का वतनी हूँ, एक्स ग्राम पंचायत चेयरमैन। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट चुनाव अनकरीब आ रहा है। 2019 में भी हम माइनॉरिटीज़ को बीदर से क्या तो टिकट देना बोल के डिमांड रखे थे, लेकिन हमारे डिमांड को क्या बोलो तो नामंजूर करते हुए सिर्फ एक पार्लियामेंट टिकट सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल से दिया गया, वो भी सीट हारे हैं। से पहले सिद्धरामಯ್ಯ साहब से भी हमारा डिस्कशन हुआ, मांगते सोबत में आर्स बरಲ್ಲಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಕಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ 28 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ. अब समाचार अब ये है कि हम तो नहीं बोल रहे, माइनॉरिटीज़ के लोग 88% कांग्रेस को वोट देने की वजह से कांग्रेस यहाँ पे जीती बोल के सीएम, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर और दीगर
हमारे HK पाटिल वगैरह सब अपने स्टेटमेंट दिए सो है। तो 80% 88% माइनॉरिटीज़ का वोट वन सेट क्या है तो कांग्रेस की तरफ टर्न हुआ। तो हमारे नहीं जीतने का मतलब क्या, हमारे को भी नुमाइंदगी होना पार्लियामेंट के ऐवानों में, असेंबली के ऐवानों में, पब्लिक के चाह रही कि हमारा भी एक नुमाइंदा यहाँ से है और ये ज़रूरी है। इससे पहले बीदर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट MP मुस्लिम था, शौकत अली साहब। उसके बाद में रिजर्वेशन कर दिए। रिजर्वेशन करने के बाद में गुलबर्गा जनरल था। गुलबर्गा में 96 में खमरुल इस्लाम जनता दल से जीते। उसके बाद इकबाल अहमद सरडगी 2 मरतबा कांग्रेस से जीते। फिर वो सीट रिजर्व हो गई और सीट रिजर्व होने के बाद में एक्चुअल क्या बोले तो बीदर से माइनॉरिटीज़ को देना चाहिए था, लेकिन क्या मालूम है इग्नोर कर दिए माइनॉरिटीज़ को। तो लिहाजा अब शिद्दत से क्या है तो हम तमाम लोग हर तालुक़े के, जिसके अंदर बीदर डिस्ट्रिक्ट से 5 तालुक़े जात आते हैं, जिसके अंदर बीदर प्रॉपर है, औराद है, भालकी है, बसवा कल्याण है, उमनाबाद है, बीदर साउथ है, चिंचोली है, अलंद है। तो हम डेलीगेशन के तौर पर बेंगलुरु गए थे। तमाम जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लीडर है और अदर्स कम्युनिटी के जो भी लीडर्स हैं, हाईकमांड से हम रुजू हुए और ये डिमांड रखे कि अब के बार तो भी क्या है वो तो माइनॉरिटीज़ को टिकट आप देना ज़रूरी है। इसलिए कि आप खुद बोल रहे हैं कि हम 88% माइनॉरिटीज़ का वोट मिला बोल के। तो जिस तरीके से एक मजदूर काम करता है, खेत में हो या ऊपर कोई घर बनाता, तो उसका पसीना सूखने के बाद में उसकी मजदूरी पहुंच जाना चाहिए। तो ये हमारे जायज़ मुतालबात है। तो हाई कमांड ये बोलती है कि माइनॉरिटीज़ नहीं जीत सकता। मतलब पार्टी के लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो क्यों नहीं जीत सकता, हम ये बोलते। मिसाल के तौर पर रामनगर में, रामनगर की बात लीजिए। रामनगर में इकबाल साहब MLA, एक्स प्राइम मिनिस्टर का पोतरा, एक्स CM का बेटा कुमार स्वामी का, उसको डिफीट करके DK शिव कुमार एक माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट को MLA बनाए। यहाँ पे भी जितने भी लिंगायत समुदाय के होने दो, कुरबा समाज के होने दो, SC होने दो, क्रिश्चियन होने दो, कोली, धनगर वगैरह अदर्स जो वोट हमारे को सपोर्ट करे तो हम बराबर क्या हो तो जीत सकते हैं। यहाँ से नहीं जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हर कम्युनिटी को वोट देते हुए आ रहे हैं, हम लिंगायत को दे रहे। लास्ट टाइम फिर भी हम पूछने के बाद में नहीं मिला टिकट, तो ईश्वर खंडे साहब के लिए मैं यहाँ से अलंग तक मैं दौरा करके क्या तो काम किया हूँ। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब की बार मुसलमानों की ये डिमांड को अगर नामंजूर करे तो बिल्कुल वो लोग मायूस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि उसमें इलेक्शन की कोई पूर्ति वाजू कायम नहीं रहती। ये तमाम लोगों के डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए हाई कमांड यहाँ से अयाज खान साहब एक वाहिद शख्स है जो कुछ ना होते हुए भी अवामी खिदमत जारी रखे हैं, बिला मजहब मिल्लत। उनके पास कोई मुस्लिम ही बोल के नहीं, लिंगायत, जैसा कि हमारे लिंगायत समाज के बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन समाज के, SC समाज के है। तो अभी तो ये इलेक्शन का ये नहीं है हम माइनॉरिटीज़ को दियो बोल के, जो हम जमा में ज़्यादा माइनॉरिटीज़ है, लेकिन अदर्स कम्युनिटी भी उनके साथ ज़माने से जुड़ी हुई है। हम और एक मरतबा हाई कमांड से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस अपील को रद्द ना करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान साहब को अगर पार्लियामेंट का टिकट देंगे तो यहाँ पे हर समाज के लोग काम करके भारी बहुमत से उनको जिताएंगे बोल के मेरी आशा है। जय हिंद, जय कर्नाटक। बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को दिए तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उतना शिद्दत से सपोर्ट नहीं होता। गुज़िश्ता मंगले तैयार है, हमारे को मायूस कर रहे हैं, हम भी ओल्ड सो जाते हैं, हम उतना शिद्दत से काम नहीं करते, डालते हैं वोट कांग्रेस कुछ नहीं। माइनॉरिटी में दूसरे को दिए तो सपोर्ट करते हैं, माइनॉरिटीज़ में इनसे अच्छे अगर है तो देते क्या। खाली अयाज खान का नाम मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, माइनॉरिटीज़ में इनसे अच्छे काबिल आदमी है तो दे दो। अयाज खान के चलफाज है, मेरे से अच्छा कोई काबिल है तो उनको दे दो। मैं खुद काम करता हूँ बोल के बोले हम। नहीं, उनसे पुराने भी कांग्रेस लीडर्स है ना कांग्रेस में। वो मैं कांग्रेस का नहीं बोल रहा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं ना कोई JDS का हूँ, ना BJP का हूँ, ना BSP का हूँ। पहले था मैं एक्स मिनिस्टर मेहरादीन पटेल का मामू हूँ, पहले JDS में था, JDS का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट था मैं। लेकिन माइनॉरिटीज़ को दे रहे तो माइनॉरिटीज़ को करते, अदर्स को दिए तो अदर्स को भी करते माइनॉरिटीज़ को, इसमें सवाल नहीं। माइनॉरिटीज़ को नहीं, आप
आपका डिमांड जो है हाईकमांड को बता रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को वोट टिकट देना बोलते हैं, हाँ, बाई चांस मिस हो गया, आपके रूल क्या रहेगा? एक रूल कुछ नहीं रहेगा। अब सुनिए, सेकुलर जो पार्टी है उसके साथ रहेंगे आप, लेकिन हम उतना अलर्ट नहीं रहेंगे वोटर्स, क्योंकि बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, हमारे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? हमारे को गुलबर्गा जब रिजर्व हो गया तो माइनॉरिटीज़ क्या मालूम है, बीदर में फिक्स करना था जनरल होने के बाद में। एक धर्म सिंह साहब सीएम है, एक सीएम है, उनके रिक्वेस्ट करने से वो लोग ठहरे, हारने के बाद में उनको देना था। अब उसके बाद में हमारे ईश्वर खंडरे जी ठहरे, उन्होंने भी ऑल इंडिया लिंगायत समाज के सदर थे। मैं दूसरों के ताल्लुक से टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी डिमांड ये है। रहीम खान क्या क्या करते थे, वो टिकट कैसा मिला, कैसा वोट दिया तुम बीदर वाले से, जवाब दो। रहीम खान को फर्स्ट टाइम जो ठहरे उन्होंने, मैं उनको टिकट दिलाया हूँ रहीम खान को। कब से? 4 साल से नहीं, बीएसपी का टिकट मैं दिलाया उनको। उस वक्त बायोडाटा क्या था उनका, क्या खिदमत थे, बोलिए आप। देखिए, रिलेवेंट क्वेश्चन करो आप, रिलेवेंट क्वेश्चन करो। ये वोट कहीं को डालना वो बोले तो कैसा? कैंडिडेट बोलो आप, पहले कैंडिडेट बोलो, कैंडिडेट के बारे में बोलो। एक्टिविटीज बोल रहा हूँ, सुनिए। समाजी खिदमत क्या है मालूम है, एक अरबी मदरसा गरीब बच्चों के लिए फ्री करें। सुनिए, कॉलेजेस है, कॉलेजेस में कई गरीब बच्चों को क्या है तो कम डोनेशन लेके एडमिशन करा रहे हैं। बहुत मुस्तैद बच्चे हैं तो अपने पॉकेट से खर्च करके क्या हो तो एडमिशन। यहाँ पे कॉलेज उनका है, गुलबर्गे में है, बेंगलोर में तो शायद कॉलेज देख के मैं परेशान हूँ। 2 लाख स्क्वायर फीट पे क्या है तो कंस्ट्रक्शन है। तो काबिल आदमी है, जमाने से क्या बोले तो हम जानते, हम क्या हर तालुके का आदमी जानता है उनको। एजुकेशन की इंडस्ट्रीज है उनके पास। और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। हमारे जब्बार साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आप तमाम लोगों के सामने एक बात वाज़ेह तौर पर मैं कह देना चाहता हूँ। ये कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी से इन सारी बातों के डिमांड की एक ही वजह है, वो ये कि यहाँ पर अब जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहे हैं वो देश के सबसे अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पर कम्युनल और सेकुलर के बीच में टकराव है। बीजेपी अपने आप को भले ही सेकुलर कहती हो, लेकिन मुसलमानों को एक हाशिए पर रखकर, उनको अपने आप से दूर रखकर ना किसी एमएलए को टिकट देती है, ना किसी एमपी को टिकट देती है, ना वो मुसलमानों से वोट का डिमांड करती है। अब ऐसे में सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों के वोट लेती भी है, मुसलमानों को टिकट देती भी है, तो ऐसे पार्टियों से ही हम डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ कर्नाटका में सिवाय कांग्रेस के और कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसको हम सेकुलर पार्टी कहा जाए। साबिक़ा में जनता दल एक सेकुलर पार्टी थी जिसके नाम के साथ सेकुलर जुड़ा हुआ था, लेकिन ये हालिया असम्बली इलेक्शन के बाद से जब से उसको डिफीट हुई है, उसने भी बीजेपी से अपने हाथ मिला लिए हैं। तो ऐसे में सेकुलर पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बच गई है। अब मुसलमान अगर वोट डालना है तो सिवाय सेकुलर पार्टी के किसी और को तो वोट नहीं डालेंगे। इसीलिए जैसे कि न्यूटन का लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शंस आर द इक्वल एंड पैरेलल, यानी अमल और रद्द अमल दोनों एक दूसरे के मसावी और मुतजाद होते हैं। आप जिस ज़ोर से दीवार पर बॉल मारेंगे उसी ज़ोर से बॉल वापस आएगा। अगर आप आहिस्ता मारेंगे तो आहिस्ता वहीं का वहीं टपका खाएगा। तो यहाँ असम्बली इलेक्शन में मुसलमानों ने पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरे इत्तेहाद के साथ, एकजहती के साथ कांग्रेस को, जैसे कि कहा गया कि 88% वोट देकर कांग्रेस को इक़्तिदार में लाए।
और जो कांग्रेस को जो कर्नाटका में इक़्तिदार नसीब हुआ, यकीनन सारे दूसरे सेकुलर वोट्स भी उसको मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने अपने जोश व खरोश का इजहार किया। तो हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी अपने रिएक्शन के तौर पर मुसलमानों के साथ वैसा ही अपना मामला पेश करे, वैसा ही अपनी यगानगत मुसलमानों के साथ पेश करें। आपने हमको वोट दिया है, हम आपको नुमाइंदगी दे रहे हैं, हम आपको सब कर रहे हैं। तो जैसा कि कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने 5 सीटों का डिमांड किया था, कम से कम 3 सीट तो कम से कम मुसलमानों को कर्नाटका से मिलनी चाहिए, जिसमें से बीदर एक बहुत अहम सीट है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके आज़ादी के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में बीदर से एक मुस्लिम कैंडिडेट शौकतुल्लाह अंसारी यहाँ से मुंतखब हुए थे, और दूसरा इलेक्शन आते आते बीदर को रिज़र्व सीट कर दिया गया था, और वह रिज़र्वेशन तकरीबन 50 साल तक कायम रहा। 50 साल के बाद जब रिज़र्वेशन हटा तो उसके बाद यहाँ पर धर्म सिंह साहब जो कर्नाटका के एक सीएम थे, वो यहाँ से उम्मीदवार बनकर आ गए। चूँकि वो बहुत सेकुलर आदमी भी थे, उनको माइनॉरिटीज़ का चैम्पियन भी कहा जाता था, मुसलमानों के तय उनके दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी थी, और वो बहुत ज़्यादा खद्दावर लीडर थे। तो उनके सामने मुसलमानों ने कोई दूसरे कैंडिडेट का मुतालबा नहीं किया, उन्हीं को कबूल किया और उनके हक़ में वोटों का इस्तेमाल किया, और इस तरह वो जीत कर भी आए। लेकिन दूसरे इलेक्शन में वो हार जाने के बाद तीसरे इलेक्शन के वक्त जो गुज़िश्ता इलेक्शन था, मुसलमानों ने अपना डिमांड रखा कि ये सीट जो बीदर की है ये मुसलमानों को दी जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कांग्रेस पार्टी तमाम तबक़ात के वोट लेती है, तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी भी देना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान जीत नहीं सकता, हार नहीं सकता, ये टिकट देने के बाद की बात है। ऐसे बहुत से जगह होते हैं जहाँ पर जीतने के चांसेस नहीं होते किसी उम्मीदवार के, लेकिन पता नहीं क्यों पार्टियां उस उम्मीदवार को टिकट दे देती हैं, जो नज़र आता है कि ये तो हारने के लिए टिकट दिए है, लेकिन पार्टी अपने उसूल के हिसाब से काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो किसी मुसलमान को टिकट दे, और यहाँ से जैसे कि कहा गया कि दीगर मुसलमानों की बनिस्बत जनाब अयाज खान साहब ने अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रखा है, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। तो ऐसे में अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पार्टी किसी और का मुस्लिम कैंडिडेट का इंतखाब करती है तो भी कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम उसकी कोई मुखालिफत नहीं कर रही। इनका डिमांड ये है कि किसी मुसलमान को टिकट दिया जाए, लेकिन अयाज खान साहब चूँकि एक मजबूत दावेदार है इसलिए जो है ना उनकी तायीद कर रही है। जहाँ तक उनकी कारकर्दगी की बात है, ये कारकर्दगी सब वोटर्स जांचेंगे कि किसकी कारकर्दगी क्या है, और जो है टिकट लेने के लिए पार्टी जो है ना सिर्फ कैंडिडेट का अपनी पार्टी से जुड़ा रहना और उसका जो है ना जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो सारे पार्टी देखेगी, पार्टी देखकर टिकट देगी। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि हम जब जो है ना इतनी चाहत के साथ, इतनी एकजहती के साथ कांग्रेस को जब वोट देते हैं तो फिर हमारे जवाब में पार्टी का भी रिएक्शन वैसे ही होना चाहिए। मुसलमानों को अगर कम से कम 3 सीट भी अगर मिल जाती हैं तो इंशाअल्लाह ताला पूरे कर्नाटका में लोग और सारे मुसलमान कांग्रेस के हक़ में वोट देंगे। जैसा कि पूछा गया एक सवाल ये कि अगर मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है तो क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो काम जज्बे के साथ, जोश और खरोश के साथ किया जाता है वही काम मायूसी के साथ अगर करते हैं तो उस काम के अंदर वो मज़ा नहीं रहता, वो दबदबा नहीं रहता। तो इसलिए हमारा ये डिमांड है कि कांग्रेस बीदर से मुसलमान को टिकट दे। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋರಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ 3 ಸಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ MP ಆಗಿದ್ದರು. ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಸರಡ್ಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಿತು, ಆ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು 8 ತಾಲೂಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಮತದಾರ ನೋಡಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಮೇಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಸರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. यहाँ पर पिछले 6 महीने से बेंगलुरु में डेलीगेशन के तौर पर गए. वहाँ पर भी हम मिनिस्टर से बात किए, माइनॉरिटी मिनिस्टर से बात किए, KPCC प्रेसिडेंट से बात किए, सिद्धरामैया साहब से बात किए, उनसे डिमांड भी किए. 2019 में भी एक हमारा डिमांड था, स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि गुलबर्गा इज़ रिजर्व फॉर SC/ST, बीदर इज़ जनरल. तो वहाँ कॉम्पेंसेट करने के लिए बीदर हमारा नियर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, तो यहाँ से हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड था. 2019 में भी हमको मायूस किया गया. अब ये बार हमारा और एक बार स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि यहाँ से नुमाइंदगी क्यों ना दी जाए. पूरे कर्नाटका में अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 1 करोड़ के अबव है मुसलमानों की पॉपुलेशन. SC/ST नंबर 1, नंबर 2 पे मुस्लिम, नंबर 3 पे लिंगायत हैं कर्नाटक में. वो हिसाब से अगर देखा तो बहुत कुछ हमारा कैलकुलेशन होता है, वो हमको डिमांड नहीं करना है. उसमें सिर्फ हमारा डिमांड है कि 5 पार्लियामेंट्री सीट दी जाए कर्नाटका में. 5 क्यों देना साहब, आप क्वेश्चन करेंगे. 5 इसलिए देना है कि सिद्धरामैया साहब की सरकार, DK शिवकुमार साहब प्रेसिडेंट KPCC, उन्होंने एक्सेप्ट किए. हमारे होम मिनिस्टर जी परमेश्वर साहब भी एक्सेप्ट करें कि 88% इन ब्लॉक कर्नाटक के मुसलमान कांग्रेस को बैक करें. उसके लिए वी केम इनटू पावर. ये उनका ओपन स्टेटमेंट है. ये मीडिया में भी, आप लोग मीडिया के आप अच्छी तरीके से जानते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट वी आर डिमांडिंग 5 सीट्स फॉर माइनॉरिटीज. फॉर एग्जाम्पल बीदर, बेंगलोर सेंट्रल, हावेरी, मैंगलोर एंड हुबली धारवाड़. 5 डिमांड्स, 5 सीट्स हम डिमांड करें. अभी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, कांग्रेस पार्टी क्या डिसीजन लेती है, हमको नहीं मालूम. हमारा स्ट्रांग डिमांड ये है, क्योंकि बीइंग ए नेबर डिस्ट्रिक्ट वाले हम ये स्ट्रांग डिमांड करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से, कि बिदर इज सूटेबल फॉर मुस्लिम कैंडिडेट. यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं, यहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन साइजेबल है,
4 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। ये CSTs अच्छे हैं, बैकवर्ड हैं, क्रिश्चियंस हैं, पॉपुलेशन अच्छी खासी, लिंगायत हैं यहाँ पर। तो अगर ये देखा जाएगा कैलकुलेशन, धर्म सिंह साहब का जो इलेक्शन था, आप लोग वोट दिए हैं यहाँ पर। 2009 के इलेक्शन में धर्म सिंह साहब जीत गए अच्छे लीड से। 2014 में उन्होंने भगवंत खोबा साहब के सामने हारी, अलग बात है। तो वो बेस्ड एक माइनॉरिटी स्टेटस है यहाँ। OBC मोस्ट बैकवर्ड स्टेट इन कर्नाटका इज बीदर। मकसूद अली खान साहब लॉन्ग बैक 40-50 साल पहले शायद आपके यहाँ पर MP थे, शौकत अली साहब। उसके बाद से तो मैं समझता हूँ कोई भी मुसलमान यहाँ से नुमाइंदगी नहीं किए। तो एक अच्छा मौका है पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ कर्नाटका में अगर 3-4 अगर मुसलमानों को सीट दिए तो उससे इंसाफ तो होगा। मैं समझता हूँ ना इंसाफी नहीं है। तमाम धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, तमाम वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, सेकुलर पार्टी से हम ये डिमांड करते हैं कि मुसलमानों के साथ जस्टिस किया जाए। जैसा कि हमारे नाम हम अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी एक साहब पूछ रहे थे जर्नलिस्ट साहब कि अयाज खान साहब को क्या बुनियाद पर वोट देना है, क्यों देना है। मैं अयाज खान साहब के बारे में इतना बोलूँगा कि अयाज खान साहब एक सीनियर कांग्रेसी लीडर है। एक्टिवली उन्होंने कांग्रेस की सभाओं में दिखते रहते हैं हर जगह। अब स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं। मैं उनको जितना जानता हूँ कि ही इज़ ए एजुकेशनिस्ट। गुलबर्गा में भी उनके ब्रांचेस हैं कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशन के, बिदर में है, बेंगलुरु में है। ही इज़ वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी टॉप लीडर्स एंड आई थिंक ही कैन कैपेबल फॉर द चॉइस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। और हमारे नज़दीक तो हम कैंडिडेट का पहले ये नहीं करे थे, बाद में कोई फेस नहीं आया तो अयाज खान साहब का नाम आ रहा था। बहुत सारे इसमें उन्होंने आगे आ रहे थे, तो हम सोचे कि कोई भी नहीं आ रहे। जैसा कि मन्नान साहब का नाम था और एक हमारे क्या नाम, मकसूद चंदा साहब का नाम था। हम सिर्फ और सिर्फ अयाज खान साहब के लिए हम नहीं करे, हम किसी का भी नाम रिकमेंड नहीं करे। लास्ट आवर्स में ये तय हुआ है कि कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने नहीं आ रहा है, तो हम होल हार्टेडली इनके नाम को प्रपोज कर रहे हैं। तरीके से मुसलसल 6-8 महीने से जायज़ा ले रहे हैं बिदर कॉन्स्टिट्यूंसी का। और हमारी कोशिश मुसलसल 8 महीने से लगी हुई है कि हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, जिसमें जो है हम लोग हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से यहाँ से भेजने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखना चाह रहे थे। कई सारे हमारे से ताल्लुक़ रखने वाले या बिदर के एक जिम्मेदार लोगों में से जो आज टिकट के एस्पिरेंट्स भी हैं, उनसे जब हम लोग बोले कि आप लोग एक मीटिंग तो तलब करिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, ताकि यहाँ से लोगों को एक मैसेज जाए कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की डिमांड है, तो वो लोग एक कदम पीछे हटते चले गए। मेरे नज़दीक और हमारे फोरम के नज़दीक सिर्फ अयाज खान साहब एक ऐसी शख्सियत नज़र आए जो खुलकर सामने आ रहे हैं कि मुझे कैंडिडेट बनाने का अगर कांग्रेस पार्टी प्रपोज करती है मुझे और मुझे कैंडिडेट बनाती है, तो मैं आगे बढ़कर काम भी करूंगा, तमाम तर कम्युनिटीज़ के लिए काम करूंगा और पार्टी को भी मजबूत करने का काम करूंगा। तो हम लोगों को एक ही चीज़ समझ में आई है 6-8 महीने में कि अगर कोई एक कैंडिडेट मुस्लिम कम्युनिटी से जो सामने खुलकर आ सकता है और काम कर सकता है और जीतने की पोजीशन पे आ सकता है, तो वो सिवाय अयाज खान साहब के कोई और नहीं है। उनके एजुकेशनिस्ट होने की हैसियत से क्या कारनामे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली किस लेवल पर वो काम करते हैं, वो अपनी जगह रहा। लेकिन एस्पिरेंट होने की हैसियत से उनका जो किरदार सामने नज़र आया है, वो जो है ज़्यादा मजबूत नज़र आया है बनिस्बत दीगर दूसरे के एस्पिरेंट से मुस्लिम कम्युनिटी के। अब मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी को ही वोट करती आई है। आज से नहीं, कई ज़माने से कांग्रेस पार्टी को ही जिताते आई है। मुस्लिम कम्युनिटी का वोट कांग्रेस पार्टी को ही रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं की है। अगर चंद एक लोग करते हैं तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेजॉरिटी वोट मुस्लिम कम्युनिटी का कांग्रेस पार्टी को गया है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड कर रहे हैं, एक सेकुलर पार्टी होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार पार्टी की होने की हैसियत से और मुस्लिम कम्युनिटी का इतना भरपूर सपोर्ट उसको हासिल होने की हैसियत से, उनको कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों को, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को मुस्लिम कैंडिडेट इस बार देना ज़रूरी है। बिदर, क्योंकि अभी आपके सामने दोनों सीनियर लीडर्स और जिम्मेदारों ने आपके सामने बात रखी कि क्या वजह से बिदर को मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए। हम लोग 5 के एस्पिरेंट्स
को मुस्लिम कम्युनिटी से देना चाहिए, बीदर से, हावेरी से, हुबली धारवाड़ से, बेंगलोर सेंट्रल से, मैंगलोर से, ये हम लोगों की डिमांड रही। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लेजिस्लेटिव फोरम ने बात रखी कि हम लोग 3 दे सकते हैं, तो हम लोगों ने उसको भी जो है एक्सेप्ट किया कि आप कम से कम 3 तो दीजिए। उसमें बीदर को भी शामिल रखा गया है, ये खुशी की बात है। अब बीदर में सिवाय अयाज खान साहब के कोई और मजबूत लीडर हमें नज़र नहीं आ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी से, जो बढ़ चढ़कर आगे काम करने की ख्वाहिश रखता है और काम करने का जज्बा रखता है। इसीलिए हम लोगों ने फोरम की जानिब से अयाज खान साहब का नाम प्रपोज किया है। हमारा अयाज खान साहब से ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम लोग उनका नाम इसलिए प्रपोज कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूती से अपनी बात को सामने रख रहे हैं, अपना दावा मजबूती से रख रहे हैं। हमारा ताल्लुक़ तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स से रहा है और उनसे हम लोगों ने मुतालबा ये किया कि मुस्लिम को इस बार मौका दिया जाए बीदर से, क्योंकि गुलबर्गा से मुमकिन नहीं है। गुलबर्गा में रिजर्वेशन जब से आया है तब से हम लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि शायद बीदर को ये मौका मिले। पूरे कर्नाटक में अगर देखा गया तो सिवाय बीदर के कोई और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी अभी 4 लाख के करीब, जब्बार साहब ने आपके सामने बताया है कि 4 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है। टोटल वोटर 16 लाख के करीब हैं, उसमें से 4 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये देखते हुए और दीगर कम्युनिटीज़ जब सामने आकर साथ देंगे तो यकीनन यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर पार्लियामेंट में जा सकता है। ये हमारी ख्वाहिश भी है, ये हमारी उम्मीद भी है। और पूरे के पूरे साउथ इंडिया से अगर हम देखें तो एक मानो में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ी कमी है, जिसको पूरा करने के लिए बीदर कॉन्स्टिट्यूंसी एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर सकता है। और इसलिए हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि बीदर को खास करके तवज्जो दी जाए और बीदर में जो मजबूत कैंडिडेट बन सकता है वो अयाज खान साहब है, तो उनको मौका दिया जाए। हम लोग दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में भी बोल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हावेरी से सलीम अहमद साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हम लोग चाहते हैं कि बेंगलोर सेंट्रल से ज़मीर अहमद खान साहब खुद सामने आए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, ताकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम कम्युनिटी का पार्लियामेंट में हो सके और कांग्रेस पार्टी को भी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल हो सकें। ये हम लोगों की कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की ख्वाहिश है। हम लोग कोशिश इसीलिए कर रहे हैं और अगर मुस्लिम कम्युनिटी से दिया जाता है तो हम भरपूर हमारे फोरम की तरफ से उनके लिए काम करेंगे और उनको जिताने का जितना हम लोगों से बन पड़ सकता है हम लोग उनके लिए उनके हक़ में काम करने का हमारा अज़म है, हमारी कोशिश रहेगी।